السلام علیکم پیارے دوستو، 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا میں جس کا خون بہا کر یزید پلید نے حکومت حاصل کی تھی، وہ حکومت بھی زیادہ دن تک نہ رہی اور 3 سال 7 مہینے کے بعد ہی 5 ربیع الاول 64 ہجری میں 39 سال کی عمر میں وہ جہنم کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد میں اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت پر بیٹھا، جو کہ نیک شخص تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیمار تھا اور صرف 2-3 مہینے کی خلافت کر سکا اور 21 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب مصر و شام کے لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی، مگر مروان خفیہ سازش سے مصر و شام پر قبضہ کر لیا اور جب وہ مرنے لگا تو اپنے بیٹے عبد الملک کو گدی سونپ دی۔ عبد الملک بن مروان کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ بیٹا پیدا کرتے ہیں مگر مروان نے اپنا باپ پیدا کیا۔ یہ پہلے تو نیک آدمی تھا مگر بعد میں فاسق اور فاجر ہو گیا۔ اس کے زمانہ خلافت میں کوفہ پر مختار بن عبید ثقفی کا تسلط ہوا۔ مختار نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا خوب انتقام لیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دیکھیے کس طرح سے رنگ لا رہا ہے۔ جب یزید مر گیا 3 سال 8 مہینے گزر گئے اور کچھ عرصہ گزرنے لگا تو وہی کوفہ کا مختار ثقفی، جس کے یہاں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تھے، مختار ثقفی عوام میں ایک آواز اٹھاتا ہے۔ وہ لوگوں سے کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ خون حسین کا بدلہ لیا جائے، کیا تم لوگ میرے ساتھ دو گے؟ تو پوری عوام حسین کی طرف سے تھی اور سارے لوگ اٹھ پڑے اور کہا کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اپنی تلوار اٹھا رہے ہیں، اور سارے لوگ مختار ثقفی کے جھنڈے کے تلے آ گئے۔ مختار ثقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا ایک فرضی خط لکھا اور لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ مجھ کو امام حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے خط لکھ دیا ہے کہ قاتلانہ حسین امام کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ قاتلانہ امام حسین کا بدلہ لیا جائے، حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو حضرت محمد بن حنفیہ یہ کہتے ہیں، میں نے وہ خط نہیں لکھا۔ اگر وہ نواسۂ رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا ہے تو مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مختار ثقفی کو جب اور طاقت مل گئی تو مختار ثقفی نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں مختار ثقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار ثقفی کے پاس گرفتار کر کے سب سے پہلے سمر لایا گیا۔ جب سمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار ثقفی کہتا ہے، بتا سمر، تیرا کیا حال کیا جائے؟ اور کہا کہ تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھی۔ اتنا سنتے ہی سمر کانپنے لگا اور سمر یہ کہتا ہے، مختار ثقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار ثقفی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی اور میں حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم، تو نے حکومت کے لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلائی ہے اور سنا گیا ہے کہ امام حسین کے سر کو تو نے ہی تن سے جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور
काटी जाएगी। सिमर ये सुनकर खौफ से कांपने लगा। मुख्तार सख्फी ने कहा, जल्लादो, सबसे पहले इसकी दोनों आंख फोड़ दो, इसकी जुबान काट दो, इसके जिस्म के एक एक टुकड़े हिस्से कर दो और काट काट कर इसको तड़पा तड़पा कर मारो। प्यारे दोस्तों, इस तरह से सिमर को पहली बार सजा दी गई और ऐलान कर दिया गया कि कातिलाने हुसैन में से एक का अंजाम लोग अपनी आंखों से देख लें। और जब उमर बिन साद इस जालिम को गिरफ्तार करके लाया गया तो उससे मुख्तार सख्फी पूछता है, तुम कहाँ थे? तुमने इस तरह से हरकत क्यों की? उमर बिन साद कहता है, अब मैंने हुकूमत में हिस्सा लेना छोड़ दिया है, अब मैं गोशा नसीन हो गया हूँ, अब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उमर बिन साद की बातें सुनते ही मुख्तार सख्फी ने ललकारा और कहा, जालिम, तूने जिस दिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन के ऊपर तीर चलाया था, तुझे उस दिन सोच लेना चाहिए था कि मैं बिल्कुल भी सियासत में नहीं जाऊंगा। तूने नवासाए रसूल को करबला के मैदान में तड़पाया था और वो तू ही है जिसने एक एक को करबला के मैदान में पानी के लिए तरसाया था। अब सोच तेरे साथ क्या मामला किया जाए। उमर बिन साद ये सुनते ही खौफ से कांपने लगा और उसके बेटे को बुलाया गया जिसका नाम हफ्स बिन अम्र था। उसे बुलाने के बाद मुख्तार सख्फी ने कहा, बाप के सामने बेटे को कत्ल किया जाए। उमर बिन साद ने कहा, ये मैं देखकर बर्दाश्त कैसे करूँगा। तो मुख्तार सख्फी ने कहा, जब इमाम हुसैन के बच्चे अली असगर को तीर लगा था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने उनका जवान बेटा अली अकबर शहीद किया गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। जब हुसैन के सामने भतीजे कासिम को तड़पा तड़पा कर मारा गया था तो हुसैन ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। मुख्तार सख्फी ने कहा, मारो इन जालिमों को। और फिर उमर बिन साद पर तीर चलाना शुरू कर दिया गया और उसके बाद में उसकी उंगलियां काट ली गईं, आंखें निकाल ली गईं, उसकी जुबान काट दी गई, उसके जिस्म का एक एक हिस्सा काट दिया गया और उसे आग में जलाकर खाक कर दिया गया। और इस तरह से कातिलाने हुसैन में से दूसरे कातिल को सजा दी गई। अब तीसरा दुश्मन गिरफ्तार करके लाया गया। तीसरा दुश्मन जिसने हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जिस्म अक़दस को सर से जुदा किया था, ये वो मरदूद है जो इमाम हुसैन के सर मुबारक को रुमाल में लपेटकर नेज़े पर लटका कर चल रहा था। उसको पकड़ने के बाद मुख्तार सख्फी के सामने पेश किया गया और मुख्तार सख्फी ने हुक्म दिया उसे इस तरह से सजा दी जाए कि दुनिया याद रखे। और उसके हाथ पैर को एक एक हिस्से को अलग कर दिया गया। उसके हाथ पैर अलग करने के बाद उसकी जुबान काट दी गई, फिर उसकी गर्दन काटी गई और फिर इस तरह से उसको सजा दी गई। अब उसके बाद हुरमला पकड़ा जाता है। हुरमला ये वही है जिसने अली असगर के हलक पर तीर चलाया था। मुख्तार सख्फी ने कहा, इसके चारों हाथ पैरों को बांध दिया जाए, उसके मुंह को ऊपर उठाया जाए और इसकी गर्दन में इतने तीर मारो कि तीर से उसकी गर्दन छल्ली हो जाए। इस तरह से हुरमला को तड़पा तड़पा कर सजा दी गई। उसके बाद इब्ने ज़ियाद को पकड़ लिया गया। जब इब्ने ज़ियाद को पकड़ने के लिए मुख्तार सख्फी की फौज जाती है तो वो वहां से बचकर भाग जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सका और उसे मुख्तार सख्फी के सामने गिरफ्तार करके पेश किया गया। मुख्तार सख्फी ने इब्ने ज़ियाद से कहा, उस दिन को याद करो जब तुमने अपने जवानों को और लोगों को इमाम हुसैन के सामने भेजा था। इब्ने ज़ियाद कहता है, तो मेरे साथ क्या करोगे? मुख्तार सख्फी ने कहा, मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और इतनी बेदर्दी से कत्ल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। उसके जिस्म के एक एक हिस्से को अलग किया गया और मुख्तार सख्फी के सामने कोफा के गवर्नर हाउस इब्ने ज़ियाद का सर उसी जगह पर रखा गया जहां हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक रखा गया था। इतने में एक सांप जाहिर होता है और उसके नथने में घुस जाता है और मुंह से निकलता है।
3 मर्तबा यही मामला हुआ, फिर वो सांप गायब हो गया। सांप के मुंह में घुसने और निकलने का मतलब ये दिखाया जा रहा है कि उसके ऊपर इतना सख्त अजाब होगा, उसके ऊपर सांप मुसल्लत कर दिए जाएंगे। और इस तरह से इब्ने ज़ियाद को सजा दी गई। और अब्दुल्ला बिन उसैब, मलिक बिन नसीर, हमल बिन मलिक, इन तीनों को मुख्तार सकफी ने हाथ पैर काट कर जिंदा छोड़ दिया ताकि तीनों इसी तरह से तड़पते बिलखते मर जाएं। उसके बाद हकीम बिन तुफैल ताई को पकड़कर लाया गया। वो हकीम बिन तुफैल ताई जिसने अब्बास अलमदार के कपड़े उतार लिए थे, फिर उस जालिम को जिंदा ही नंगा करके तीरों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद उमैर बिन सुहै को लाया गया जिसने सोहदाए करबला में से कईयों को जख्मी किया था और उसको भी नेजों से छेद करके मार दिया गया। तारीख में आता है कि 6000 यजीदी मुख्तार सकफी के हाथ मारे गए। कितने अंधे और कोड़ी के मर्ज में मुब्तला हो गए। कुछ यजीदियों के आंखों में गर्म सलाई फेरी गई, कुछ को जिंदा जलाया गया और कुछ लोगों के मुंह सुअर की तरह हो गए और कुछ तो ऐसे थे कि पानी पीते मगर प्यास ना बुझती और यूं ही तड़प तड़प कर मर जाते और कोई भी जिंदा ना बच सका। और इस तरह से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के कातिलों को सजा मिलती है। 6 साल के अंदर ऐसा तख्त पलटा कि दुनिया से इमाम हुसैन के कातिलों का सफाया हो गया। और जैसा कि रब ने फरमाया था, मैं 1,40,000 को मारूंगा, तो उसने अपना वादा पूरा किया और 1,40,000 को हलाक किया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से जंग को तो 22,000 का लश्कर ही गया था, तो फिर 1,40,000 क्यों मारे गए? इसका जवाब ये है, जैसा कि हदीस पाक में है कि जो शख्स गुनाह में शामिल ना हो मगर उसे अच्छा समझे तो वो भी उसी की मिसाल है। तो अगर जंग में 22,000 का लश्कर यजीदियों का मौजूद था मगर हज़ारों मकदार दोगले कूफी यानी कि राफजी उसमें शामिल थे, तो अल्लाह ताला ने उन सब को तरह तरह की मुसीबतों में डालकर हलाक कर दिया। और आज भी और क़यामत तक ये गद्दार यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार रहेंगे, यूं ही अपना सीना पीटते रहेंगे और यही कहते रहेंगे, ए हुसैन हम न थे, या हुसैन हम न थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को इमाम हुसैन के लिए एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।